પરમાત્મા પિતા સૃષ્ટિ પર અવતરિત થઈ અને 85 વર્ષ પૂર્વે અવતરિત થઈ અને આખા વિશ્વને પરિવર્તન કરી વિશ્વની અંદર ફેલાયેલી દુઃખ, અશાંતિ, પાપાચાર, દુરાચાર, અત્યાચાર, અનાચાર, અશ્લીલતા અને આતંકવાદની જે આજે આપણે સૌ જોઈ રહ્યા છે બોલબાલા છે ચારે બાજુ, દરેક મનુષ્ય આત્મા પોતાના જીવનની અંદર સાચી સુખ અને શાંતિની શોધમાં છે. ભૌતિકતા અને સાયન્સ ટેકનોલોજીનો આ યુગ છે જેમાં થોડા સમય માટેની નાશવંત ખુશી દરેક વ્યક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે દિવસ અને રાત દોડી રહ્યો છે અને એના માટે પૈસાની પાછળ પાગલ છે. પણ સાચી શાશ્વત શાંતિ, ખુશી અને આનંદ વર્તમાન સમય કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય એના માટે દરેક વ્યક્તિ આતુર છે. તો પરમાત્મા પિતાએ આ સૃષ્ટિ પર દિવ્ય અવતરણ કરી અને એવું શ્રેષ્ઠ ઈશ્વરીય જ્ઞાન આપ્યું અને સાથે સાથે સહેજ રાજયોગનો અભ્યાસ કરાવ્યો કે જેના દ્વારા આપણા જે ઓરિજિનલ ભારતીય સંસ્કૃતિના મૂલ્યો, જે ખરેખર આપણી ઓરિજિનલ સંસ્કૃતિ છે, એ જ આપણો વારસો છે, જે આપણને શરૂઆતમાં આપણા પૂર્વજોએ આપ્યો, દેવી દેવતાઓએ આપ્યો અને આપણે સૌ આજે એને ભૂલી ચૂક્યા છીએ અને એનું સ્થાન વિષય વિકારોએ લીધેલું છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને અહંકાર, આવા અનેક વિકારોથી આખો સમાજ, આખું વિશ્વ આજે પીડિત છે. ત્યારે આ ઈશ્વરીય જ્ઞાન અને રાજયોગના અભ્યાસ દ્વારા આપણે સૌ ફરીથી આપણા ઓરિજિનલ આત્માના ગુણો છે એને જીવનમાં ધારણ કરી પોતાના જીવનને દિવ્ય, શ્રેષ્ઠ અને અલૌકિક બનાવી શકીએ છીએ. તો પરમાત્માએ આ મહાન દિવ્ય અવતરણ કર્યું છે, એનું જ યાદગાર આ મહાન કર્તવ્ય કર્યું છે, એનું જ યાદગાર એ આ શિવરાત્રિનો પાવન પર્વ છે. તો આજે આપણે સૌ આજના પર્વ નિમિત્તે પરમાત્માએ આ ધરા પર અવતરિત થઈ અનેક આત્માઓને સર્વ સંબંધોનું સુખ આપ્યું છે, જેના માટે આપણે અત્યાર સુધી ભક્તિ માર્ગમાં ગાતા આવ્યા, ત્વમેવ માતાશ્ચ પિતા ત્વમેવ, ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ. હે પ્રભુ પિતા, તમે જ અમારા માતા, પિતા, બંધુ, સખા, સર્વસ્વ છો. દરરોજ આપણે ગાઈએ છીએ પણ હજુ સુધી આપણે પરમાત્મા સાથે એ સર્વ સંબંધનો અનુભવ નથી કર્યો. તો એ સર્વ સંબંધનો અનુભવ કેવી રીતે અનેક ભક્તિ માર્ગના પુરાણો, કથાઓ અને આપણા આધ્યાત્મિક વારસાની અંદર આપણે સૌએ સાંભળેલું છે, એને અલગ અલગ જગ્યાએ નિહાળેલું પણ છે. તો એ જ પરમાત્મા પ્રેમને રજૂ કરતું નાટક આપણે સૌ થોડી જ ક્ષણોમાં જોવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે રાજયોગ એટલે પરમાત્મા સાથે સર્વ સંબંધ. આત્મા પરમાત્માની સાથે સંબંધ બાંધે છે, એ સંબંધનો આધાર એ પ્રેમ છે અને પ્રેમના સાગર આત્માને પ્રેમ આપે છે, પ્રેમના વચન આપે છે અને દરેક વચનની પૂર્તિ પણ કરે છે. એક સાધારણ આત્મા એ પ્રેમના સંબંધમાં પરમાત્મા સાથે જોડાઈ અને દેવ આત્મા બની જાય છે અને આ પ્રેમના સંબંધની પરાકાષ્ઠા જ એ પરમાત્મા મિલન છે. તો ત્રિદેવ સાથે ત્રિદેવી આત્માની યાત્રાની અદ્ભુત ગાથા પેશ કરતું આ એક નૃત્ય નાટક છે, જે આપણે સૌ નિહાળવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. તો આપણે સૌ ખૂબ ધ્યાનથી પોતાની આંખોને સ્ટેજ પર રાખીશું, કારણ કે આ એટલું સુંદર નાટક છે કે એક વખત જો આપણા માનસ પટલ પર એની સ્મૃતિ રહી જશે તો ખરેખર સાચો પરમાત્મા પ્રેમ કોને કહેવાય એની દિવ્ય અનુભૂતિ આપણે કરી શકશું. તો ચાલો આપણે સૌ નિહાળીએ સુંદર નાટક. तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो. तुम्ही हो साथी, तुम्ही
सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रजापति, मैं आदि शक्ति हूँ। समस्त ब्रह्मांड के संचालन में जो ऊर्जा है, मैं वो हूँ। कुंडलिनी शक्ति मैं हूँ। ग्रह नक्षत्रों की गति मैं हूँ। विष्णु का सुदर्शन मैं हूँ। महादेव का त्रिशूल मैं हूँ। मानव कल्याण के लिए और महादेव से मिलन हेतु मैं तुम्हारे गृह में अवतरित हुई थी, किंतु तुम मेरा परिचय न पा सके और अपने अहंकार में आकर महादेव का अपमान कर दिया। ना ही मैं किसी की पुत्री हूँ, ना ही किसी की बहन। अब मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं। इस शरीर से जुड़े अपने सभी संबंधों का मैं परित्याग करती हूँ। जीवन में जब भी इस प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होता है, तो मनुष्य संपूर्ण रूप से स्वयं को ईश्वर के प्रति आश्रित कर देता है। वो स्वयं कोई प्रयास नहीं करता। वो इस भ्रम में जीने लगता है कि ईश्वर आएंगे और उसकी सहायता करेंगे, किंतु ईश्वर केवल उसी की सहायता करते हैं तो स्वयं अपनी सहायता करने का साहस करे, जो अपनी परिस्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास करे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रिय वत्सों, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं सतधर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होता हूं। मैं ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव, तुम सर्वात्माओं का परम पिता हूं।
वर्तमान समय जब सभी मनुष्य आत्माएं स्वयं को और मुझ परमात्मा को भूल काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के वशीभूत हो दुखी, अशांत और पतित हो जाती हैं, तब मैं परम धाम से आकर तुम्हें सहज गीता ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देता हूं तथा समस्त मनुष्य आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देता हूं। मीठे बच्चों, स्वयं को देह से भिन्न आत्मा निश्चय करो और मुझ पारलौकिक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट और सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुमने जन्म जन्मांतर से मेरी भक्ति की है, उसी भक्ति का फल मैं ज्ञान के रूप में प्रदान कर रहा हूं। इसीलिए मैं इस साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूं। इसी माध्यम से मैं सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना करता हूं, जो तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। अतः योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र। शिव को पाना मतलब सब कुछ पा लेना। शिव ही आदि है और अंत भी शिव है। शिव अतुल्य है तो महादेव को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना तो करना ही होगा। महादेव कौन है? महादेव वो हैं जो नहीं है, और जो नहीं है वो महादेव। मैं समझी नहीं। महादेव को समझने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें त्रिदेवों को समझना होगा। त्रिदेव? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा? ब्रह्मा कौन है? संसार के रचयिता। विष्णु? संसार के संचालन करता। और महादेव? संसार के संहार करता, जो विनाश करके संसार को संतुलित रखते हैं। महादेव का जन्म कब हुआ? वो अजन्मे है कुमारी। उनका ना आदि है और ना अंत है। वो विद्याओं के तीर्थ हैं, अविनाशी हैं, विश्वनाथ हैं। कालोपरि पंच महाभूतों के नाथ, भूतनाथ हैं वो।
जब गौर शिव से रुष्ट हो तब दोनों को ही कष्ट हो। गौरी ही शिव का टूटता यह धैर्य है। शिव का शिवा से अर्थ है, बिन गौरी शंकर अर्ध है। प्रेम क्या है? बताइए महादेव, कृपया बताएं कि प्रेम का रहस्य क्या है? क्या है इसका वास्तविक स्वरूप? क्या है इसका भविष्य? आप तो हमारे गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रेम ज्ञान से हमें प्रबुद्ध करना भी तो आपका दायित्व है। बताइए महादेव। प्रेम क्या है ये तुम पूछ रही हो पार्वती? प्रेम का रहस्य क्या है? प्रेम का स्वरूप क्या है? तुमने ही प्रेम के अनेकों रूप उजागर किए हैं पार्वती। तुमसे ही प्रेम की विभिन्न अनुभूतियां हुई। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर नहीं थे। क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग मुझसे दूर चली गई, मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक और निराधार हो गया। यही तो प्रेम है पार्वती। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का पूर्ण हो जाना, यही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनः मिलन करवाने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना, हर संभव षड्यंत्र रचना। इसका कारण हमारा असीम प्रेम ही तो है। तुम्हारा पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर मेरे एकाकीपन और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकलने के लिए विवश करना और मेरा विवश हो जाना, ये प्रेम ही तो है। तुम्हारे और मेरे सुखी दाम्पत्य के लिए केवल 3 वचन अनिवार्य हैं सती। और वो वचन क्या है? सदैव मेरे कहे का पालन करना, मुझसे असत्य ना कहना, और अंतिम मुझसे कदापि कुछ गोपनीय ना रखना। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं कभी आपसे असत्य नहीं कहूंगी, आपसे कभी कुछ गोपनीय नहीं रखूंगी। या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। पिताजी, जिसके पिता स्वयं योगेश्वर और माता आदि शक्ति पार्वती हो, उसका तपस्वी होना पूर्व नियत ही नहीं अपितु उसका धर्म होता है। पिताजी, क्या हमारा भी कोई कर्तव्य है? अवश्य है पुत्री। तब
जब द्वारा धर्म और कर्म के नए अध्यायों को उजागर करना है। किंतु आप महादेव हैं और हम आपकी पुत्री। बिना तप के धर्म और कर्म के नए अध्याय को उजागर नहीं कर सकते। क्या आप हमें ऐसा कोई वरदान नहीं दे सकते? अवश्य दे सकता हूं पुत्री, किंतु तप के बिना जो भी प्राप्त होता है वो शुभ नहीं होता, वो सत्य नहीं होता, वो सुंदर नहीं होता, उस संबंध की परिपक्वता अतुलनीय होगी। कृष्णा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधा 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 कृष्ण, इतने प्रेम से पुकारोगे तो मुझे आना ही होगा ना? तो आओ ना राधे, आओ अपने कृष्ण के पास। केवल प्रेम के प्रयोग से तुम्हें खोजना है, वही क्या? वैसे भी वही खेल खेलने चाहिए जिसमें प्रेम साकार है। हार जीत के लिए खेले जाने वाले खेल वो तो व्यर्थ है। जहाँ राधा ने कृष्ण के साथ मिलकर आत्मचोली का खेल खेल कर प्रेम को साकार किया। सब ठीक है? ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। क्या कर रहे हो? मैं इन्हें प्रसाद खिला रहा हूँ। इन्हें? और नहीं तो क्या, इन अन्य प्राणियों को भी तो प्रसाद मिलना चाहिए, इनकी भी तो इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। क्यों मनुष्यों को ही इसका अधिकार है, बताओ? केवल मनुष्य के ही नहीं, तुम तो हर एक प्राणी के हो कृष्ण। आओ तुम भी खिला दो। और इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद मेरी तो यही इच्छा है कि मैं तुम्हारी ही रहूं। मेरा जीवन, मेरा अस्तित्व, मेरा नाम सदा सदा के लिए तुमसे ही जुड़ा रहे। तुम्हारी ये इच्छा तो पूर्ण होनी ही है राधा। इस संसार में सभी से मेरा संबंध क्षण भर का है, किंतु तुमसे अनंत का है राधा। हमारा अस्तित्व, हमारा जीवन आनंद से एक ही है, केवल नाम अलग, किंतु आज से वो भी अलग नहीं होंगे। न तुम राधा, न मैं कृष्ण, हम कहलाएंगे राधा कृष्ण। संसार यदि प्रेम की पर्यायवाची शब्द खोजने निकलेगा तो उन्हें केवल राधा कृष्ण की गूंज सुनाई देगी। प्रेम के अंतिम उपहार के रूप में मैं तुम्हें एक वचन देना चाहता हूँ राधा। तो बताओ।
क्या है तुम्हारा अंतिम उपहार? मैं उसे ग्रहण करने के लिए सज्ज हूँ। एक समय आएगा राधा, जब ये आकाश तारों से भर जाएगा। पूर्णिमा होगी, शीतल पवन होगी, सर्वत्र पारिजात की प्रेम पूर्ण सुगंध होगी। इस चंद्रमा का प्रकाश सूर्य सा तेजस्वी प्रतीत होगा। मेरी राधा प्रेम की चरम सीमा पर होगी और कृष्ण की प्रतीक्षा का अंत होगा। तब राधा, तब मैं पूरब से आऊंगा और तुम्हें अपने साथ सदा सदा के लिए ले जाऊंगा। सच? कैसा भी दिन आएगा? निसंदेह। अच्छा, तो उस दिन कहाँ ले जाओगे मुझे? मैं तुम्हें एक नए स्थान पर ले जाऊंगा, एक ऐसा स्थान जो केवल राधा कृष्ण के लिए होगा, एक ऐसा स्थान जो समस्त सृष्टि में सबसे अद्भुत होगा, एक ऐसा स्थान जिसकी सभी प्रशंसा करेंगे। और मैं वहां ले जाऊंगा तुम्हें राधा, ये मेरा वचन है। चाहे जो हो जाए कृष्ण, मुझे तुम पर, तुम्हारी प्रेम पर, तुम्हारी कही हर बात पर मेरा विश्वास अटल है और सदैव अटल ही रहेगा। तुम्हारे वचन से बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं उस क्षण की, उस स्थान के निर्माण की, हमारे अनंत मिलन की प्रतीक्षा करूंगी। कृष्ण, प्रातः होते ही तुम चले जाओगे। क्या प्रातः तक अपना हाथ मेरे हाथ में रख सकते हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। राधा ने पुनः एक बार कृष्ण के हृदय की बात कह दी। कृष्ण, ये बांसुरी जो हमारे प्रेम की धुन बजाती है, मेरे मन को अधीर कर जिस सुध-बुध खो देने पर विवश करती है, मेरे रोम रोम को प्रेम से भर देती है। जानते हो, आज तक इसी आशा के साथ तुम्हारी परम सखी बनकर, तुम्हारी प्रेमिका बनकर, तुम्हारी परम गोपी बनकर जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है ना, वो सब कुछ मेरे हृदय में है। ये कृष्ण का ही नहीं, ये ब्रह्मांड का सौभाग्य होगा। मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। मैं आया हूँ, मैं लाया हूँ शिव का ये प्रसाद, आत्मा की परमात्मा से प्रीत की है ये रीत। शिव को जानो, शिवा को जानो, शव को जाओ भूल, संबंध को जोड़ो, बंधन को काटो, शिव शंकर के भेद को जानो। अलग है ये एक दूजे से, पिता पुत्र कहलाए, राधे कृष्ण संग रास रचाने। मैं आया हूँ, मैं लाया हूँ ज्ञान की अनुपम भेंट। मैं हूँ ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा कुमार जय किशन। आप सभी को शिवरात्रि की कोटि कोटि बधाइयाँ। आप सभी ने क्या देखा, क्या समझा और क्या सोचा? आइए
मैं ही आपको समझा देता हूँ। हम सभी के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, मतें भी अलग हो सकती हैं, लेकिन श्रीमत एक ही श्रेष्ठ है, ब्रह्मा की मत। परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं। आप चाहे माने या ना माने, ये तो आपके भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन एक बात तो सिद्ध है कि परमात्मा एक है, निराकार है और शिव है। ये त्रिमूर्ति आकारी देवता है, परमात्मा नहीं। ये त्रिदेवियां वास्तव में आत्माएं हैं। वो आत्माएं हैं जो सतयुग में देवी देवताएं कहलाई जाती थी। पुनः जन्म लेते लेते जब आत्मा कलयुग के अंतिम जन्म में पहुंचती है, तब उनका पुनः मिलन परमात्मा से होता है। आत्मा सर्व संबंधों से परमात्मा की बन जाती है। दैहिक संबंधों को बुद्धि से भूलकर 8 प्रहर परमात्मा की लगन में मगन हो जाती है, तब जाके वो मास्टर भगवान बन जाती है। यही है राजयोग की यात्रा। संबंध की परिशुद्धता को आत्मसात करना है। सती यानी कि सतो प्रधान आत्मा जो शिव को पाने के लिए तपस्या करती है और मुक्ति की अधिकारी यानी कि कैलाश की स्वामिनी बनती है। परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण अर्थात राधे कृष्ण। शंकर के द्वारा महाविनाश के पश्चात सतयुग में सब आने ही वाला है। आत्मा रूपी राधे को परमात्मा ये प्रेम के उपहार स्वरूप वचन देते हैं कि मैं पूरब से आऊंगा और तुम्हें सदा सदा के लिए ले जाऊंगा। पूरब यानी भारत। तो क्या आप सभी श्री कृष्ण की दुनिया में आने के लिए सज्ज हो? तो राधे बनना पड़ेगा। परमात्मा का वर्षा व वरदान है जीवन मुक्ति भव। मैं शिव का पौत्र, ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा कुमार जय किशन सो भविष्य का राजकुमार हूँ। मुझे तो ये नशा छा गया है। मैंने तो थोड़ी भांग का प्रसाद ले लिया है, अब थोड़ा आप भी ले लीजिए। एक योद्धा की भांति विकारों पर विजय प्राप्त करो, विजय उत्सव मनाओ। तो आइए मेरे साथ खुशी में सूद बुद भूलकर नाचिए, झूमिए, गाइए और बोले हर हर महादेव। सितारे देखो हमारे शत्रु तो सारे हारे। जय हम वो सिपाही जो है सदा ही रूप शिवा का धारे। जय हे आज अंधेरे छटे हैं, कम हुए हैं घटे हैं। कल जो दुश्मन यहाँ थे आज पीछे हटे हैं। गाती ये धरती है, गाता ये अंबर है, गाती है सारी हवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा आज गूंजा हुआ है। जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा आज गूंजा हुआ है। जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा। सारी दीवारें भी सारी तलवारें भी तुमने दुश्मन की अब तोड़ दी है। आई थी आंधियां जिस दिशा से यहाँ उस दिशा मोड़ दी है। पार उतरना ही था ये तो करना ही था, ये तो होना ही था। सुन ले भाऊ, उनको
भूषण है और जो है ताज अपना है। हिम्मत की अग्नि में लोहा पिघलता है, विश्वास हमको हुआ तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गुंजा हुआ है जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गुंजा हुआ है जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा। आज शिवरात्रि है आई, घड़ी शिव ब्याह की है आई, आज शिवरात्रि है आई, उमा घर खुशियाँ है आई, उमा घर खुशियाँ है आई, आज शिवरात्रि है आई। भूत प्रेत संग में शिव की बाराती, माता मैना देख डर जाती, नागों की माला झटा झूठ वाला, मैया देख होश खो जाती, मैया होश खो जाती, पार्वती दुल्हन बनी मन मुस्काती, भोले से प्यारे दूल्हा बनने को कहती। बड़े प्यारे दूल्हा बनते, शिव जी सुंदर दूल्हा दिखते, सभी का मन है मोह लेते, बड़े प्यारे शिव जी दिखते, बड़े प्यारे शिव जी दिखते, आज शिवरात्रि है आई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।